Assalamu alaikum students, hopefully you're doing well. Last time we have completed a decision structure जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया था of if statement. So today what will we do? We'll just continue doing those if statement and उसमें हम multiple questions को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से questions और आ जाते हैं. Okay, I'm sharing the screen with you. So let's do those if statement questions. I hope you all have done that assignment which I have given to you on this weekend. If anyone is facing any sort of difficulty in joining that classroom, you have to let us know so that we can fix that thing. Okay. So last time हमने ये वाला क्वेश्चन किया था. I'm just repeating that same thing with you and फिर हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन. So it is very important and you'll see many of the questions in your past papers of these if statements. If you have no idea about the if statement या आगे जाके अभी आप प्रिपेयर नहीं करते तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप मिस कर देंगे सूडो कोड्स के. I hope you people are understanding these pseudo codes. These are not that tough. जितना एक हाइप बनी हुई है कि पता नहीं सूडो कोड्स में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. ओके, आपको बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, वीकली बेसिस पे व्हाट एवर इज गिवन टू यू. ओके, सो इट्स द क्वेश्चन इज राइट ए सूडो कोड टू इनपुट ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स फ्रॉम द यूजर. तो हमने दो चीजें यूजर से इनपुट करनी थी, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स. यूजर से इनपुट करनी थी, राइट. व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंड प्रिंट परसेंटेज. ऑल्सो प्रिंट. अभी देखो यहाँ तक तो पुरानी स्टोरी है जो हम पहले करते थे. फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज ऐड अप की where we'll just make a decision that either that particular student is pass or fail, and we have set the criteria that if you have percentage greater than 50, so आपको हमने पास करना है, otherwise unfortunately आप हो जाएंगे fail. So that was the case. तो चलें आगे देखते हैं. तो हमारे पास आगे क्या सिनेरियो है. हमने दोनों चीज़ों को डिक्लेयर किया था, ऑब्टेन मार्क्स को भी डिक्लेयर किया था, टोटल मार्क्स को भी डिक्लेयर किया था. देन वी ऑल्सो हैव डिक्लेयर्ड द परसेंटेज. सो द परसेंटेज वाज रियल. हमने यूजर से टोटल मार्क्स इनपुट किए थे वेयर देयर वाज अ मैसेज फॉर द यूजर दैट एंटर योर टोटल मार्क्स, एंड देन हमने टोटल मार्क्स का वेरिएबल लिया था. देन हमने यूजर को कहा था दैट यू हैव टू इनपुट ऑब्टेन मार्क्स, और हमने ऑब्टेन मार्क्स का वेरिएबल लिया था. देन वी जस्ट हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज, और फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज में हमने वो सिंपली फॉर्मूला लगाया बाय यूजिंग दोज वेरिएबल्स व्हिच वी जस्ट हैव डिक्लेयर्ड, और हमने परसेंटेज को प्रिंट करवा दिया. देन I have told you people that we just have to use the if statement, and there are four keywords in it: if, then, else, and if. और फिर हमने कीवर्ड यूज किया if का. We have to make a decision on the basis of percentage, so we have to write a percentage is greater than or equal to 50. Our decision is कि आपको पास प्रिंट करें, अदरवाइज एल्स वी हैव टू प्रिंट फेल. एंड इफ मीन हमारी इफ यहाँ पर एंड हो गई है. So this was the story which we have discussed in our last week. Now we just have to continue that same thing, but this time we'll use some more conditions. This time we'll have more than two conditions. So I hope कि ये पिछला वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ है. If you have any query, let me know. Otherwise फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करें. Okay guys, any question so far? And it seems like there is a lag in internet, and you all people know what is the situation going on in our country. That is just due to that. Because it seems like there is a lag in sharing screen. But still, if you'll have any question तो मुझे बताते जाना, because there is a possibility that due to that thing आपके questions कुछ आ जाए. Okay, so far it is clear. Yes, no, मुझे बताएं फिर हम आगे continue करें. If you have no question, you also have to let me know. Okay, I'm not receiving any sort of question from you. Okay, 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 got it. अभी हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
Okay guys, so now the question is we'll have multiple conditions. तो अभी मैं multiple conditions वाला question लिखता हूँ and my question is write a pseudo code to input a number and print either that number is 0, positive और negative. पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है. हमने यूजर से एक क्वेश्चन इनपुट करना है, सॉरी नंबर इनपुट करना है. एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये देखना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ देयर आर मोर देन टू कंडीशंस. ये टू कंडीशंस तो पहले थी ना, अब हमने थर्ड ऐड की है. मींस अभी हम थ्री कंडीशंस के साथ डील करेंगे. सो एनीवन प्लीज टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव टू डिक्लेयर, बिकॉज नाउ दिस टाइम यू पीपल हैव टू हेल्प मी आउट कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव टू डिक्लेयर. Okay, I think there is something wrong. Okay, अभी. Okay guys, now you just have to tell me your questions और फिर हम आगे चलेंगे. Okay, now it is enabled. Okay, now you have to tell me how many variables I have to declare. One, two, three, four. How many? Okay, one variable. Got it. So what I have to do, I just have to write declare and मैं अपना एक वेरिएबल ले लेता हूँ, that is number one, क्योंकि नंबर तो आप एक ही इनपुट करोगे. And then I have to write integer there. Why integer? Because the data type is integer. I am taking a complete number. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. Now the next part. The next thing is I just have to take the input from the user. So my message for the user will be print enter a number, and then I'll write input or number one because this was my variable. Now I want to make a decision on the basis of this number one. For that I just have to use if statement. So I'll write if number one is equal to zero. अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप इक्वल यूज करोगे, अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो सो यू हैव टू यूज एन एरो. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. सो इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट आई हैव टू प्रिंट नंबर इज जीरो. जब आप मैसेज लिख रहे होते हो देयर आर नो रूल्स टू फॉलो. आप स्पेसेस दो, आप या किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हो यू कैन, बट यूल नॉट डेफिनेटली, क्योंकि एग्जामिनर को इंग्लिश ही समझ आ रही है. else okay, the point is now there are three conditions. फर्स्ट कंडीशन में हम इफ यूज करेंगे, लास्ट कंडीशन में हम एल्स यूज करेंगे, एंड इन बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन वी हैव टू यूज एल्स इफ. राइट. सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर एल्स इफ यूज करना है. एंड व्हाट आई राइट नंबर वन is greater than 0, then print number is positive.
और आगे जाके मैं लिखूंगा एल्स। देखो ये अब अंडरस्टूड है, एक नंबर जीरो भी नहीं है, एक नंबर जीरो से बड़ा भी नहीं है। सो इट इज अंडरस्टूड कि वो नंबर जीरो से छोटा है। सो जब आप एल्स लिखोगे तो एल्स के आगे आपने कंडीशन नहीं लिखनी। यू विल जस्ट राइट एल्स प्रिंट, जीरो भी हो गया पॉजिटिव भी हो गया तो अब हम लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर इज नेगेटिव, और यहाँ पर एंड पे मेरे पास आ जाएगा एंड इफ। सो नाउ लुक एट दिस थिंग, और मुझे बताएं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो। देखो अब मेरे पास कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। एक मेरे पास ये इफ यूज हो रहा है एज अ कीवर्ड, देन आगे चलते हैं और मेरे पास यहाँ पर ये एल्स इफ यूज हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको कहा था इफ देन एल्स एंड इफ यही कीवर्ड हमारे पास यूज होते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे देन यूज हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे देन यूज हो रहा है, यहाँ पे एल्स यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे एंड इफ यूज हो रहा है। गॉट इट? सो दीज आर द कीवर्ड्स आई हैव यूज्ड, और मेरा जो वेरिएबल था वो नंबर वन था। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन इन दिस थिंग? इफ यू हैव लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे मूव ऑन करते हैं। Okay, there is a question from Musa that shouldn't we write and if more than once? No. अगर देखो अब दो सिचुएशन में ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि सर आई हैव टू यूज थ्री इफ्स, आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप लिखते हैं इफ नंबर वन इज इक्वल टू जीरो, देन नंबर इज जीरो एंड इफ। फिर आप नई इफ लगाओ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, देन वॉट एवर द कंडीशन, फिर एंड इफ लगाओ। फिर आप एक और इफ लगाओ और उसमें आप लिखोगे इफ नंबर स्मॉलर देन जीरो, उसकी कंडीशन एंड फिर एंड इफ लगाओ। वो भी सिचुएशन हो सकती है, बट देखिए वो हमारा कोड लेंथी हो जाएगा। नाउ यू वांट मल्टीपल कंडीशंस, तो हमारी बेसिकली ये इफ यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, ये यहाँ एंड इफ हो गया, अब ये इसके दरमियान में मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। सो आई एम राइटिंग इन दैट वे। तो वो वाला सिनेरियो भी हो सकता है मूसा, बट फॉर दैट यू जस्ट हैव टू राइट इफ देन एंड इफ, और फिर नई इफ, फिर उसमें एल्स इफ नहीं आएगा और एल्स नहीं आएगा। वो हर नई इफ को, हर एक इफ को चेक कर रहा होगा फिर वन आफ्टर द अदर। यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पर एक यूजर नंबर इनपुट करता है फॉर एग्जांपल थ्री, ठीक है, थ्री इज इक्वल टू जीरो, नो, वो एल्स इफ में जाएगा। थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, यस, it will print number is positive and then it will exit, it will not check this condition. सिमिलरली आप एक नंबर इनपुट करते हो जीरो, अब नंबर वन में हमारे पास जीरो है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, यस, इट विल प्रिंट नंबर इज जीरो ऑन द स्क्रीन एंड देन इट विल टेक एन एग्जिट। गॉट इट? सिमिलरली एक नंबर है वो माइनस फाइव है, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, नो, माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, नो, else it will print number is negative. So this is how it works. I hope you got it. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अगेन तो मुझे बताओ आप, अदरवाइज हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर। अच्छा, सो आवर टॉपिक इज इवन एंड ऑड है, इसके साथ ही हम कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज राइट ए सूडो कोड to input a number and print either it is even or odd. or odd. ओके, सो we'll input a number और हमारा सूडो कोड हमें ये बताएगा that either are
number is an even number or an odd number. अब इसके फॉर्मूला को आपने अंडरस्टैंड करना है. देयर आर टू थिंग्स इन इट. पहले मैं आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस बताता हूँ. जैसे आपने प्रिंट इनपुट पढ़ा है ना, ऐसे हमारे पास एक मॉड फंक्शन होता है और एक डेव फंक्शन होता है. पहले हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका पर्पस क्या है. अगर मैं लिखता हूँ 5 div 2 और इधर मैं लिखता हूँ 5 mod 2, सो आई हैव टू सी कि आंसर क्या आएगा. अब डिव का मतलब यहाँ पर होता है डिविडेंड एंड मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस. सो मुझे देखना है कि उसका डिफरेंस क्या है. 5 div 2 मीन्स आई हैव टू टेक दिस 5 और उसको अपने प्लेस करना है अंदर. आई हैव टू टेक दिस 2 और मुझे उसे प्लेस करना है यहाँ पे. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट. इट्स 2 2s are 4 एंड रिमाइंडर इज 1. डिव मीन्स डिविडेंड ना, तो डिविडेंड ये होता है. So this 2 is the dividend. So it means my answer is 2. Now moving on to the next thing. 5 mod 2. अब इसी 5 को आपने प्लेस करना है अंदर, जैसे आपने ऊपर किया था. इस 2 को आपने प्लेस करना है यहाँ पे. You just have to do the calculation. So मेरे पास क्या आंसर आया? 2 2s are 4, remainder is 1. This modulus means remainder. तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया. नाउ आई हैव टू टेक नाउ आई हैव टू सी कि इवन नंबर क्या होते हैं. इवन नंबर वो होते हैं ना कि मैथ्स में पढ़ते हैं, द वंस व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर. ठीक है. सो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर में कोई भी नंबर है. नंबर में लेट्स से मेरे पास 10 है, तो मैं इस कंडीशन को कुछ इस तरह से लिखूंगा. आई विल जस्ट राइट इफ नंबर, क्योंकि नंबर में मेरा नंबर है. फॉर एग्जाम्पल वो 5 है, 6 है, 10 है, 19 है. सो आई जस्ट राइट नंबर मॉड 2 मीन्स आप नंबर को 2 पे डिवाइड करें इफ दैट नंबर इज टोटली डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 मीन्स इफ इट दैट आंसर इज इक्वल टू 0, देन आई विल प्रिंट ऑड, सॉरी इवन. एंड इफ आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मूसा मुझे कहता है कि सर आई हैव अ नंबर 11 एंड आई हैव टू सी आइदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. सो 11 mod 2 मीन्स आई टेक 11 देयर. ठीक है. mod 2 मीन्स आई डिवाइड इट बाय 2. mod मीन्स 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 1. अब देखो इस पूरे का आंसर मेरे पास क्या आया है. इस पूरे का आंसर मेरे पास 1 आया है. इज 1 इक्वल टू 0? नो इट इज नॉट, सो इट विल नॉट प्रिंट इवन. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड बाकिर मुझे ये कहता है दैट सर आई हैव टू सी दैट दिस नंबर इज एन इवन और नॉट. सो नंबर mod 2 मींस नंबर में 12 था और हाँ 12 था. 12 था और हमने 2 पे डिवाइड किया. 2 6 और 12, रिमाइंडर इज 0. अब देखो इस पूरे का आंसर मेरे पास क्या आ गया? 0. 0 इज इक्वल टू 0, यस. सो इट विल प्रिंट इवन. कौन इवन है? दिस 12 इज इवन. मुझे इतनी सी बात बताएं कि ये वाली जो करंट स्क्रीन है, ये इसका आइडिया हुआ है आपको कि हाउ इट इज वर्किंग? एनी डाउट? अगर डाउट है तो फिर मैं दोबारा क्लियर कर सकता हूँ आपको. फिर हम इसकी बेसिस पे जो है वो आगे क्वेश्चन करते हैं. ओके परफेक्ट. अभी हम इसी क्वेश्चन को करते हैं जो ऊपर हमने अभी डिसाइड किया था. बाकिर, अहद, मिशेल, शहीर, इज इट क्लियर? इट सीम्स लाइक दो को क्लियर है. ओके. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिक्लेयर. किसको डिक्लेयर करें? नंबर को डिक्लेयर करें बिकॉज आई जस्ट हैव टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर. सो नंबर एंड इट्स एन इंटीजर. ये रूल्स फॉलो करने हैं क्योंकि हमने रूल्स फॉलो करने के लिए बनाए हैं. माई लाइफ माई रूल्स वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, अदरवाइज फिर एग्जामिनर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा. ओके. नाउ आई हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम द यूजर
So it will just like this: print, enter a number, input number. This is an old story. Now I have to see either this number is even or not. So for that, I'll just write if number mod 2. So mod was the function we just have studied. So it is mod 2 is equal to 0. क्या आप 2 पे डिवाइड करें उस नंबर को, एंड अगर हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या करेंगे हम? देन प्रिंट नंबर इज इवन, राइट? या इट इज इवन. एल्स प्रिंट इट इज ऑड. इफ के बाद यहाँ पर मुझे डिफरेंट. ठीक है, अब देखें. फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कहते हैं दैट सर आई हैव टू सी आइदर दिस 7 इज एन इवन और नॉट. सो बेसिकली दिस 7 is stored in number. ठीक है. 7 mod 2, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग. नंबर में 7 है ना, 7 mod 2 मीन 7 mod 2. 2 3 is 6, रिमाइंडर इज 1. इस पूरी इक्वेशन का आंसर मेरे पास 1 आया है, क्योंकि मॉड का मतलब था मॉडुलस, मींस रिमाइंडर. 1 इज इक्वल टू 0. नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0. इट मींस कि वो यहाँ ये कंडीशन नहीं रन करेगा. वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा एंड इट विल प्रिंट इट इज ऑड ऑन द स्क्रीन. गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर. मैं आपके साथ जो है वो नोट्स भी शेयर करा दूंगा. यू ऑल्सो हैव टू सी दीज क्वेश्चंस एंड उसके बाद आप फिर वो प्रैक्टिस शीट करके भेजा करो. Guys, is this question clear? You just have to convert this pseudo code, right? अब आप मुझे सिर्फ ये लॉजिक लिख देना, ठीक है? And my question is, write a pseudo code to input a number and print it is odd. Odd के लिए जस्ट आपने कोडिंग करनी है. मुझे बस ये वाला पार्ट कोड करके दें. I just want to see कि it is odd or not. ये if statement just डिजाइन करनी है for the odd number. Yes, Musa, it is also correct. लेकिन फिर आपने पूरा लिखना है, if mod into number comma 2 is equal to 0. Yes, it is also correct. हाँ, Shahid just said that we have to write if number mod 2 is equal to 1. ठीक है, I have a question for you everyone. And my question is, ये आपने complete pseudo code लिख के देना है, ठीक है? I hope it will take only 5 minutes. And my question is, write a pseudo code to input a number and print either it is divisible by 3 or not. So this is the question for you guys. You have like 2 3 minutes to do that. You just have to send me in chat. You can also write it on paper, take a picture, send that picture in the chat. That is also the option.
Okay, I just have received the code from Shahir, and that is the right one. Good job. Noor, well done. Perfect. ठीक है guys, good one. ठीक है, perfect. Okay, Musa, well done. Okay, so this was the answer of it, and now I'm moving on to the next question. ठीक है, so this is how if statement works. Okay, मैं थोड़ा सा इसको different करता हूँ question को. And my question is, I'll just input a number. अगर किसी को solution आता है, you can also send that solution to me. I'll just input a number. So question is, write a pseudo code to input a number, and it will print either that number is divisible by both 3 and 5 or not. जैसे कि देखो 40 है ना, तो 40 नहीं, 40 नहीं, 30 है ना, तो 30 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5. 15 अगर मैं एंटर करूंगा, वो कहेगा यस इट इज बोथ डिविजिबल बाय 3 एंड 5. अगर मैं 20 एंटर करूंगा, सो इट विल से इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5. सो द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5. अगर वो एक से डिवाइड हो रहा है, सो नहीं, वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा. सो let's write a pseudocode to input a number and print either it is divisible by both sorry, both 3 and 5. Okay, I just have to declare again a single number. So it will be declare number 1, your number, colon integer, and it will be like this, colon integer. I just have to take this number from the user. जैसे मैंने यहाँ पर लिया था यूजर से नंबर, ऐसे ही मुझे आगे भी लेना है. Okay, so I have to input a number from the user. My if condition will be, कोई हेल्प करना चाहता है if condition में, so most welcome. If number mod 3 is equal to 0, it should be divisible by both 3 and 5. ठीक है. And in between, I just have to write and in caps because it's a keyword which will see both of the conditions. If both are the of the conditions are true, then it will print that okay, it is divisible by both 3 and 5. ठीक है, तो मुझे आगे लिखना है if sorry number mod, स्पेस कम है तो स्पेस बनानी पड़ेगी, mod 5 is equal to 0. ठीक है, then print number is both number is divisible by both 3 and 5. So okay, शहीद ने मुझे solution भेजा. Good one. And if, so that's it. Now look, for example, मुझे यहाँ पर कोई भी एक नंबर मिलता है, and the number is let's say 30. ठीक है.
अब देखो, 30 mod 3, 30 mod 3, 3 10 are 30 एंड रिमाइंडर इज 0। देखो इसका आंसर तो 0 आ गया। एंड 35 6 are 30, रिमाइंडर इज 0, अगेन इसका भी आंसर 0 आ गया। 0 and 0, यस इट इज ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, so it will definitely go inside and will say number is divisible by both 3 and 5। and for example एक नंबर 20 है, तो इस कंडीशन का आंसर नो आएगा, इस कंडीशन का आंसर यस आएगा। ट्रू एंड फॉल्स मींस फॉल्स, so it will not print anything that number is divisible by 3, sorry, 3 and 5। is it clear guys? अभी मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे पेज, and you just have to tell me either it is understood from your side or not। Okay guys, is it clear? आप इसको देख लो and then you have to tell me। Guys, any question? Yes, no? Okay, no question। Okay, perfect। Okay, so this is how if statement works। एंड देन आपके पास ये डिसीजन स्ट्रक्चर में फर्स्ट चीज थी। इन डिसीजन स्ट्रक्चर देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज केस स्टेटमेंट, सॉरी इफ स्टेटमेंट, एंड द सेकंड वन इज द केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हमने इफ स्टेटमेंट के फर्दर क्वेश्चंस को है। अभी हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज वी हैव सम टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और अभी हमने वन इफ कंडीशन के साथ भी किया है, टू कंडीशंस के साथ भी क्वेश्चंस किए हैं, एंड थ्री कंडीशंस के साथ भी क्वेश्चन किए हैं। सो दिस इज हाउ इफ स्टेटमेंट वर्क्स। अभी हम एक ग्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो हम ग्रेडिंग किस तरह से करेंगे। Okay, so this is a question there. It is a ready-made question for you। Write a pseudocode to input marks of a student in a subject and calculate his grade। तो पेपर में आपको कोई क्राइटेरिया भी मिल सकता है that okay this is the criteria कि 85 प्लस आएंगे तो ए स्टार मिलेगा एंड सो ऑन। अच्छा, सो बेसिकली हम यूजर से उसके मार्क्स इनपुट करें, तो डेफिनेटली वी जस्ट हैव टू डिक्लेयर दोज मार्क्स, मतलब मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। देन वी जस्ट हैव टू इनपुट द मार्क्स फ्रॉम द यूजर। सो देयर इज अ मैसेज फॉर द यूजर दैट एंटर योर मार्क्स, और उसको हम गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि आउट ऑफ 100 ही इनपुट करने हैं, फ्री नहीं होना। एंड वो मार्क्स के वेरिएबल में चले जाएंगे। ओके, नाउ वी हैव टू मेक अ कंपैरिजन कि अगर जो आपने मार्क्स इनपुट किए हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 हैं, सो इट मींस के आपने क्या प्रिंट करना है, ए स्टार। एंड आई नो यू पीपल लाइक दिस इफ स्टेटमेंट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गेट ए स्टार। देन अगर आपके मार्क्स 75 या 75 से ज्यादा हैं, सो इट विल प्रिंट एन ए, नॉट बैड। else if marks is greater than or equal to 70, then it will print b plus। marks are greater than or equal to 65, it will print b। marks greater than or equal to 60, it will print c। is greater than or equal to 55, it will print D। marks greater than or equal to 50, it will print E। अदरवाइज यूजी, यूजी का मतलब अनग्रेडेड होता है इन कैम्ब्रिज। ओके, अभी हम एक टेस्ट करते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल शहीर मुझे कहते हैं कि जी मेरे मार्क्स आए हैं 64 आउट ऑफ 100। So enter your marks out of 100 and the marks are 64। Look, 64 is greater than or equal to 5? No, ये कंडीशन तो नहीं रन होगी।
64 is greater than or equal to 75. No, this condition will not run. 64 is greater than or equal to 70. No, this condition will not run. 64 is greater than or equal to 65. No, this condition will not run. 64 is greater than or equal to 60. Yes, it is. It will print C. अब उसने C प्रिंट किया ना तो उसने अगली कंडीशंस नहीं चेक करनी. It will take an exit. These conditions will not be checked क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई हैं. So this is how multiple if statements work. Guys, इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन आपका हो, कोई क्यूरी है, लेट मी नो. So I hope आपको इफ स्टेटमेंट की समझ आई होगी. What you have to do, it's not like this कि बस आप मेरे हुए हुए प्रोग्राम्स को देखें और just understand करें और that's the end of the story. No, when I share the notes with you, just उन questions को देखा करें, खुद से उसको परफॉर्म किया करें और मैच किया करें with the solution कि क्या मैंने वो solution सही लिखा है या नहीं. बिकॉज अब अगर अभी सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लेते हैं, अभी बहुत अच्छी समझ आएगी, रात को सो के कल सुबह जागेंगे तो फिर भूला हुआ होगा कि अच्छा हमने पता नहीं कल क्या किया था. तो ये सेम मैथमेटिक्स की स्टाइल पे आपको प्रिपेयर करना होता है. जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आपने सूडो कोड्स को प्रैक्टिस करना है. बिकॉज ये अभी हमने स्टार्ट किए हैं सूडो कोड्स, आगे जाके फिर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं इन वन क्वेश्चन. तो मुश्किल नहीं होते वो क्वेश्चंस, लेकिन वो तभी मुश्किल नहीं होते अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके आगे जाते हैं. तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो फिर मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो फिर सूडो कोड्स को ब्लेम नहीं करना, दैट इज टोटली योर फॉल्ट बिकॉज आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे. Okay, guys, so that's it for today. We'll meet with case statement tomorrow and we'll do those questions. Okay, take care. Allah Hafiz.